الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، ابھی تک ہم تمام لوگوں نے غسل کے فرائض اور غسل کا طریقہ، مسجد میں آنے کا آداب اور یہاں پر کس انداز میں بیٹھا جائے، آنے اور جانے کی دعا کو سیکھ لیا۔ آج کا موضوع، آج کی گفتگو وضو کے سلسلے میں ہے۔ ہمیں کس انداز میں وضو بنانا چاہیے اور وضو کے اندر کن کن چیزوں کا کرنا فرض ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ سیکھیں گے وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں اور ہمیں کس انداز میں وضو بنانا چاہیے۔ وضو میں کل کتنے فرض ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ 4 3 یا 4؟ 3 والا کون ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر کوئی غلط بھی بول رہا وہ شرمائے نہیں، یا سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 3 نہیں بلکہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ اصل میں 3 بتانے والے شاید غسل کا یاد رہا انہیں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھلنا۔ وضو کے اندر جو سب سے پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ دھلنا۔ اب آیا سوال کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلیں گے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر پیشانی پہ بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہا لمبائی میں یہ حصہ۔ اب چوڑائی میں کہاں سے کہاں تک؟ تو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو۔ لو کسے بولتے ہیں؟ جو یہاں پر یہ حصہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لو۔ کہاں سے کہاں تک؟ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ٹھیک ہے؟ اس کا جو پورا دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اب تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، خاص کر وہ لوگ جن لوگوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں، انہیں آخر چہرہ کس انداز میں دھلنا چاہیے۔ جو لوگ بیچارے کلین شیپ اور چکنے لوگ ہیں انہیں تو کوئی پریشانی نہیں، سمجھ گئے، لیکن جن لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں انہیں کس انداز میں اپنا چہرہ دھلنا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھیاں بہت گھنی ہوا کرتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھیاں اتنی گھنی نہیں ہوتی ہیں، تو دونوں کے مسئلے الگ الگ ہیں۔ اگر کسی انسان کی داڑھی ہلکی ہے، ہلکی سے مراد پہچانیں گے کیسے کس کی ہلکی اور کس کی گھنی ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس کے کھال کی سیاہی باہر سے چمک رہی ہو تو اس کی داڑھی کو ہلکا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اسے اپنا چہرہ کیسے دھلنا ہے؟ اسے صرف بال بھگونا یہ ضروری نہیں بلکہ کھال تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جس کے یہ کھال جو ہے وہ اندر کی چمک رہی ہو تو اسے صرف بال دھلنا ضروری نہیں ہے بلکہ کھال تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ کتنی داڑھی تک؟ جو چہرے میں آتی ہے وہ، نیچے یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن کی داڑھی گھنی ہے، پانی اندر پہنچنا مشکل ہے، تو وہ وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے جو کہ چہرے کے دائرے میں جو داڑھی آتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کہ جن کی داڑھی ہلکی ہے انہیں کھال تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اور جن کی زیادہ گھنی ہے تو وہ بالوں میں وہاں تک پانی پہنچا لیں جو چہرے کے دائرے میں آتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ایک فرض مکمل ہو گیا۔ کون سا؟ سب سے پہلا فرض جو چہرہ دھلنا ہے۔ اچھا، یہ ثابت کیسے ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے جب کوئی نماز کا ارادہ فرمائے تو اپنے چہروں کو دھوئے اور اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کہاں تک؟
कोहनियों तक, और अपने सर का मसा करे और अपने पैरों को धोले कहाँ तक, पिंडलियों तक, टखनों तक। समझ गए ना। तो पहला फर्ज क्या है, मुकम्मल हुआ, और वो क्या है, चेहरा धुलना, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ठीक है ना। अब दूसरा फर्ज क्या है वुजू के अंदर, वो अपने हाथों को धुलना है, कहाँ तक, कोहनियों समेत, ठीक है। समेत का मतलब ये है धुलने में ये कोहनियां शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि कोहनियों को छोड़ दिया जाए। इला जो आता है वो इंतहा को बयान करने के लिए आता है अरबी में, यानी जहां पर भी इला लगा होगा उसका मतलब है जिस चीज के अंदर वो दाखिल है वो चीज उसके अंदर शामिल होगी, उससे अलग नहीं होगी। तो कोहनियों के ऊपर से नहीं बल्कि कोहनियां भी धुलने में शरीक है, ठीक है। पहला फर्ज चेहरा धुलना, और दूसरा फर्ज अपने हाथों को कोहनियों तक धुलना, और तीसरा फर्ज क्या है, वो अपने सर का मसा करना। कितना मसा करना, इमाम आजम के नजदीक सर के चौथाई हिस्से का मसा करना ये फर्ज है, और पूरे सर का मसा करना ये फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत है। समझ गए ना। इमाम शाफई ये फरमाते हैं कि नहीं, पूरे सर का मसा करना ये भी फर्ज है, लेकिन हम जिसके मानने वाले हैं, जिसकी इत्तिबा करते हैं, उनके नजदीक कितना है, चौथाई सर का। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप आगे से ही करें या इधर से करें या पीछे से करें। चौथाई सर तो समझते होंगे ना सब लोग, एक सर के 4 हिस्से किए जाएं, उसमें से जो एक हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, चौथाई हिस्सा। वो चाहे आप पीछे से कर ले तब भी फर्ज अदा हो जाएगा, दाएं से करें तब भी फर्ज अदा हो जाएगा, और बाएं से करें तब भी फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर और सुन्नत तरीका यही है कि आप पूरे सर का मसा कर लें। तो अंदाज कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले हम ये देखें कि अपने इन 3 उंगलियों को मिलाएं, ठीक है ना। और कहां से इब्तदा करें, शुरुआत कहां से करें, जहां से हमने चेहरा धुलने की इब्तदा की थी, यानी जहां से बाल निकलते हैं वहां से हमें क्या करना है, शुरुआत करना है इस तरीके से। और कहां लेकर जाना है, पीछे गर्दन तक, ठीक है ना। क्या हिस्सा छुटा, अभी ये उंगली छुटी और अंगूठा छुटा हुआ है, 3 उंगलियों को यहां से लेकर के पीछे तक जाना है, ठीक है ना। अभी उंगलियां का पेट जो है वो मुकम्मल हो गया, अभी ये उंगली बाकी है, ये बाकी, हथेली और अंगूठा सब बाकी है, ठीक है। जब यहां तक उंगली लेके गए तो फिर बैक में जब आना है वापस, तो फिर हथेलियों को पीछे से आगे की तरफ लेकर के आना है, ठीक है ना। अब हथेलियां भी मुकम्मल हो गई और 3 उंगलियां भी मुकम्मल हो गई, ठीक है ना। अब क्या बची, दोनों हाथों की शहादत की उंगली बची, उससे क्या करना है, अपने कानों के अंदर का मसा करना है। सारे लोग देख रहे हैं ना। सबसे पहले कहां से शुरुआत करना, तीनों उंगलियों को मिलाने के बाद में यहां से शुरुआत करना है और पीछे तक ले जाना है, ठीक है ना। और पीछे से फिर हथेलियों को आगे की तरफ लाना है सर के साइड से, ठीक है। फिर इस उंगली से कानों के अंदर का खिलाल करना है, ठीक है ना। अब क्या बचा, अंगूठा। अब अंगूठे से कान के बाहरों का मसा करना है। अब अंदर का भी हो गया, उंगलियां भी हो गई, कौन सा हिस्सा बचा, बाहर का। अब इससे क्या करना है, अपनी गर्दन का मसा करना है। समझ गए ना। बहुत सारे लोग गले का मसा करते हैं, ये मकरूह है, समझ गए ना। गले का मसा नहीं करना बल्कि गर्दन का मसा करना है। आ गया ना। फर्ज कितना है, इतना आप कर ले, आपका फर्ज अदा हो गया। चाहे इधर से कर ले तब भी फर्ज अदा हो गया, इधर से करें तब भी फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप सुन्नत तरीके से मसा करें, और वो सुन्नत तरीका यही है जो मैंने बताया, ठीक है। 3 फर्ज मुकम्मल हो गए। नंबर 1 चेहरा धुलना, ठीक है। नंबर 2 हाथों को धुलना, और नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, ठीक है। और चौथे नंबर पर अपने पैरों को धुलना, कहां तक, ये जो हड्डी दिख रही है यहां तक, समझ गए। इनमें से, इन आज़ा में से अगर किसी का एक हिस्सा भी खुश्क रहा तो उसका वजू मुकम्मल नहीं होगा, समझ गए ना। और बहुत सारे लोग अपने घरों पर वजू करते हैं, तो वजू जब सर्दियों का मौसम होता है तो वो उंगली को पानी में डुबो कर देखते हैं कि ठंडा है या गर्म है। जो इंसान ऐसा करता है तो उस पानी से उसका वजू नहीं होता है, इसलिए कि जिस पानी के अंदर कोई आज़ा में से इंसान अपने जिस्म के किसी आज़ू को भी पानी के अंदर डाल देता है तो वो पानी मुस्तामल हो जाता है। कौन, मुस्तामल का मतलब इस्तेमाल किया हुआ, और इस्तेमाल किए हुए पानी से
तहारत हासिल करना ये जायज नहीं है। पानी तो वो पाक है, पानी नापाक नहीं हुआ। पानी की बहुत सारी किस्में हैं, आपके लिए बात पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो पानी ऐसा कोई सोचे कि उंगली डाल दी तो पानी नापाक हो गया, पानी नापाक नहीं हुआ, लेकिन वो पानी ऐसा हो गया कि खुद तो पाक है लेकिन तुम्हें पाक करने वाला नहीं बचा। समझ गए ना? याद रहेंगे। नंबर 1 चेहरा धुलना, नंबर 2 कोहनियों समेत अपने हाथों को धुलना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, और नंबर 4 अपने टखनों तक दोनों पैरों का धुलना। ठीक है ना? याद रहेंगे इंशाल्लाह। कल इसमें से कोई अगर परेशानी हो तो पूछ लेना इंशाल्लाह। फिर कुछ बातें जो है वो वजू के ताल्लुक से कल और बताई जाएंगी। वमा अलैना इल्ला